नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। बात करते हैं ईरान और इजराइल के टकराव की। ईरान का इजराइल पर पहला सीधा हमला, जिसमें ईरान ने 300 ड्रोन चलाए और साथ साथ मिसाइलें दागी। इस हमले के बाद अब ये आशंका लगातार बढ़ रही है कि क्या ईरान के इस हमले का जवाब इजराइल फिर से देगा? क्या इजराइल पलटवार करेगा? इजराइल सरकार की कैबिनेट बैठक में जवाबी कार्रवाई को लेकर चर्चा हुई है और ईरान के इस हमले के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक भी हो रही है। ये हमला जो ईरान ने किया वो ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई बताया गया है, क्योंकि ईरान के कॉन्सुलेट के ऊपर सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायली हमला हुआ था। उसके जवाब में कुछ हफ्तों बाद शनिवार और रविवार की दरमियानी रात के दौरान ईरान ने 300 से ज़्यादा ड्रोन चलाए और मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। लेकिन ये बड़ी बात थी कि इतने बड़े हमले के बाद भी इजराइल में कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। इजरायली सेना ने यह बताया है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, इसने ज़्यादातर ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रिहायशी इलाकों में पहुंचने से पहले ही मार गिराया। अमेरिका ने साथ मिलकर बहुत सारी मिसाइलें इंटरसेप्ट की। इजराइल पर हमले के बाद ईरान की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि हमारा हमला पूरा हुआ, हम इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ईरान का कहना है कि ये सीरिया की राजधानी दमिश्क में उसके काउंसुलेट पे हुए हमले का जवाब है। ईरान ने इसकी जानकारी यूएन को भी दी। ये भी कहा कि अगर इजराइल ने फिर हमला किया तो हम उसका कड़ा जवाब देंगे। लेकिन क्या इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक ने ईरान के हमले की निंदा की है, लेकिन साथ ही इजराइल को जवाबी कार्रवाई करने से रोका भी है। ईरान के हमले में गाजा में जो जंग चल रही है उसको और भी हवा दी है और आशंका बढ़ गई है इस युद्ध के और गहराने की। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इजराइल के जवाबी हमले में अब तक 30,729 लोग मारे गए हैं और अब ये देखना है कि ये जंग और कितनी ज़्यादा गहरी होती है। ईरान के हमले के बाद भारत में इजराइल के राजदूत ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि ईरान किसी भुलावे में ना रहे, इजराइल के पास जवाब देने की पूरी ताकत है। Iran has said that it has completed its counter-attack and operation is over now. But if Israel attacks again, it will retaliate in big way. Following the attack, Israeli PM Benjamin Netanyahu vowed that together we will win. So what he is trying to say? Is it for further offensive against Iran? So we have to see the perspective of time. What happened is, for years, Iran is fighting Israel by proxy, having a war by proxy. But this came to a different level on October 7, when one of its proxies, and when I speak about proxies, I mean that Iran is financing, training, and equipping these proxies. One of her proxies, Hamas, done one of the worst atrocities in human history, coming in, invading 30 Israeli communities and killing 1,200 Israeli civilians and other nationals, atrocities, terrible atrocities. I don't want even to repeat them now. And then the other proxies of Iran joined the battle, Hezbollah in the north, and the Shiite militias from Syria and Iraq, and the Houthis from Yemen, shooting at Israel and at international shipping, disrupting it. So it didn't start now. And this firing directly from Iran to Israel is a further new escalation for the first time ever. It cannot remain unanswered. We were lucky to prevent huge effect and damage that they hoped to cause, because they did it, they thought well the shooting at Israel, because they shot 3 different tools, and within the rockets even surface to surface different kinds, and timed it to challenge together the Israeli defense systems that luckily were able to stand up to the challenge. So the damage was not big, but if the Iranians now think that they have a free card in engaging Israel every time or threatening Israel, we have to make clear to them that this is unacceptable and our abilities to retaliate are reasonable. So after the attack, Israeli Prime Minister Netanyahu vowed that we are going to win, together we will win the war. So what he's trying to say,
You people are going to attack Iran in a big manner? I don't know. We will leave. I think it will be in a way proportional to the way we see the Iranian attack, but we will leave how, when, where to the people who decide in Israel. Iranians can be waiting now and expecting our reaction. It will come when we see fit. और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं मुश्ताक हुसैन, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बिट्स लॉ स्कूल मुंबई में। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो इस वक्त की सिचुएशन है मुश्ताक साहब, ईरान और इजराइल के बीच, जब से ईरान का ये हमला हुआ, जिसे ईरान जस्टिफाई करता ये कहते हुए कि सीरिया में, दमिश्क में उसके कॉन्सुलेट पर हमला किया था इजराइल ने, और ये जवाबी कार्रवाई है। अच्छी बात यह है कि बहुत नुकसान नहीं हुआ इजराइल के अंदर, लेकिन अब इस बात की आशंका लगातार है कि क्या कोई जवाबी कार्रवाई होगी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे बार बार ये कहा जा रहा है कि ना की जाए जवाबी कार्रवाई, लेकिन क्या इजराइल इस वक्त एक जवाबी कार्रवाई पे विचार कर, आपको लगता है कि इसकी गुंजाइश बनी हुई है, ये मुमकिन है? जी, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले 1.5 साल में जिस तरह के चैलेंजेस फेस किए हैं अपने देश के अंदर, चाहे वो पॉलिटिकल चैलेंजेस हो या हमास के 7 अक्टूबर के अटैक के बाद सिक्योरिटी चैलेंजेस हो, उस पूरे माहौल में वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि उनकी सरकार को कमजोर समझा जाए। उनके ऊपर विपक्ष का तो दबाव है ही, हमास के साथ जो लड़ाई चल रही है उस वजह से उनके जो गठबंधन के साथी हैं उनका भी बहुत प्रेशर है नेतन्याहू सरकार के ऊपर कि सिक्योरिटी के मामले में कोई भी कॉम्प्रोमाइज करते हुए ना देखे जाए। ईरान का ये अटैक प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि 1991 के बाद पहली बार किसी देश की तरफ से इसराइल को अटैक फेस करना पड़ा है। 1991 में सद्दाम हुसैन की सरकार ने स्कड मिसाइल से अटैक किया था, और उसके बाद आज ये ईरान की तरफ से अटैक आया है। जवाब न देना नेतन्याहू। जी, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि ये इतना बड़ा हमला है, क्योंकि एक इसका मैसेज भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपने जैसा बताया ही कि ये इतने दिनों में पहली बार है, इतने सालों में कि पहली बार ईरान ने या किसी भी मुल्क ने इजराइल के ऊपर एक सीधा हमला किया है। इजराइल एक मजबूत देश है, एक मजबूत देश का संदेश देना चाहता है। उसकी छवि एक ऐसी देश की है जो इस तरह का हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन खुद इजराइल के अंदर अब नेतन्याहू के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हमने सड़कों पर देखे हैं। गजा की जो ये युद्ध जारी है, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, और जिसको नेतन्याहू ने कहा था कि वो इसको अंजाम पर लाकर या हमास के खात्मे के साथ ही इसको खत्म करेंगे, तो वो हमास का खात्मा तो होता नहीं दिखा। उसके खिलाफ अब बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट भी दिखती है इजराइल के सड़कों पर, आम नागरिकों में। अमेरिका में इलेक्शन का इशू है ये यूथ में कि किस तरह ये इजराइल की जो 30,000 से ज्यादा लोग जवाबी कार्रवाई में मारे गए हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर इस वक्त एक दबाव तो है संदेश देने का, पर और किस तरह का दबाव वो फेस कर रहे हैं? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त, या एक दुविधा में है? क्या अमेरिका उनका सपोर्ट इस वक्त कर सकता है? बिना अमेरिका के सपोर्ट के क्या वो हमला कर लेंगे? देखिए, दुविधा बिल्कुल है नेतन्याहू सरकार के सामने। उनके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर है कि वो रिटेलिएशन ना करे, वो अटैक ना करे किसी भी तरह का। नेतन्याहू सरकार के पास 2 चॉइसेस हैं। एक, अटैक करा जाए और उस अटैक के बाद जो उन्हें गुस्सा फेस करना पड़ेगा अमेरिका का, वो उसके लिए रेडी। आज के वक्त पे मुझे लगता नहीं कि नेतन्याहू सरकार ये अफोर्ड कर सकती है कि वो अमेरिका को बहुत ज्यादा नाराज करे और ईरान पे अटैक करे। और यही हमें संदेश मिलता है जिस तरह का स्टेटमेंट आया है वॉर कैबिनेट की तरफ से। उन्होंने ये कहा जरूर है कि हम रिटेलिएट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम कहाँ रिटेलिएट करेंगे, हम किस तरह अटैक करेंगे और कब करेंगे, ये हम अपनी सहूलियत के हिसाब से देखेंगे। ये सीधा सीधा दर्शाता है कि अमेरिका और बाकी पाश्चात्य देशों के प्रेशर में नेतन्याहू सरकार ये मान रही है कि वो इमीडिएटली अटैक नहीं कर सकती। एक दूसरा ऑप्शन जो नेतन्याहू सरकार के पास है वो है इनडायरेक्ट स्पाई अटैक। जैसे हमने पिछले 1 दशक में देखा है कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के खिलाफ काफी अटैक्स हुए हैं, चाहे वो साइबर अटैक हुए हो या फिर ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट का असैसिनेशन हो। इस तरह का अटैक करने का ऑप्शन रहेगा इजराइल के पास, और इस तरह का ऑप्शन अगर इजराइल लेता है तो अमेरिका उनका ज्यादा विरोध नहीं करेगा।
लेकिन इस तरह के अटैक में वो पब्लिसिटी नहीं हासिल हो पाएगी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को, जैसा एक डायरेक्ट अटैक में हो सकती है। तो उनके सामने ये दो दुविधाएं हैं, एक तो अटैक करे या ना, आपने और सही कहा दूसरी कि दुविधा ये कि किस तरह के। जी, दुविधा भी है और मेन मकसद ये भी है कि वो पब्लिसिटी जरूर हो, वो संदेश जरूर जाए कि जी इसराइल ने बदला लिया। इसराइल जैसा मजबूत देश वो खामोश नहीं बिल्कुल। बैठेगा ईरान के हमले के बाद। लेकिन क्या अमेरिका का साथ मिलेगा? और जो सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका की नाराजगी इस वक्त अफोर्ड कर सकता है इसराइल, ये बड़ा सवाल है। पर एक ब्रेक ले रही हूं मैं और वापस लौटती हूं इस चर्चा पे आपके साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। गाजा की युद्ध फैले ना, इसकी आशंका हमेशा से थी और इसका एक खतरा भी था, लेकिन ये युद्ध तो फैली ही है। वहाँ के आसपास के देशों में इसकी लपटें तो है ही, इसमें दूसरे देश भी खींचे चले आ रहे हैं सीधे तौर पे ये या किसी और तौर पे। ईरान का सीधा पहले इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, लेकिन ईरान ने जो हमला किया है इसराइल के ऊपर, उसके बाद एक सीधा टकराव ईरान और इसराइल में है। हालांकि इसराइल की तरफ से सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानियन कॉन्सुलेट पर हमला किया गया था। इसराइल की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि हिजबुल्ला जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरान की शय पे ही हमले कर रहा है। बहरहाल वो नॉन स्टेट एक्टर है और ईरान की जिम्मेदारी नहीं है हिजबुल्ला की। लेकिन अभी जो ईरान ने हमला किया है वो सीधा हमला है और उसके बाद इस जंग ने एक नया रूप भी लिया है। गाजा की जो युद्ध चल रहा है, जो 6 महीने से खत्म होने का नाम नहीं, वो और उलझता जा रहा है। मुश्ताक हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बिट्स लॉ स्कूल मुंबई। मुश्ताक साहब, अमेरिका की बात आपने इसके पहले की थी कि अमेरिका की नाराजगी इजराइल इस समय अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अमेरिका में इजरायली लॉबी, जूइश लॉबी बहुत मजबूत है और उनके यहाँ भी अमेरिका में इलेक्शन का साल है। ये एक इशू ज़रूर है, युवाओं में एक नाराजगी है इस युद्ध को लेकर। लेकिन जो टॉप पे हैं और जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और जो इलेक्शंस प्रभावित कर सकते हैं, उनकी राय भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अमेरिका के पास भी क्या कोई चॉइस है सिवाय इसके कि वो आखिरकार इजराइल के साथ रहे? जी, देखिए, इजराइल के साथ जो अमेरिका का सपोर्ट रहा है, अब वो उतना ब्लैंकेट सपोर्ट नहीं है जितना कि पिछले दशक तक था। कहने का मतलब ये हुआ कि इजराइल की एग्जिस्टेंस को जब भी खतरा होता है या होता नजर आता है, अमेरिका बिना किसी सवाल के इजराइल के साथ बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ खड़ा होता है। लेकिन जब बात इजराइल की तरफ से ईरान पर अटैक करने की आ रही है, तो अमेरिका एक डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा है कि इजराइल का ईरान पर अटैक इजराइल के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अमेरिका ये भी सोच रहा है कि ईरान पर अगर इजराइल का अटैक होगा तो ईरान के पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। और अमेरिका और बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी का भय ये है कि ईरान ये कैलकुलेट करेगा कि उसके ड्रोन्स और मिसाइल्स अगर इजराइल के मिसाइल डिस्टेंस सिस्टम को भेद नहीं पाते हैं, तो उनके पास सबसे आसान तरीका होगा पर्शियन गल्फ के ऑयल रूट्स पे अटैक करना, जैसे कि उन्होंने परसों किया भी है कि एक शिप पे कंट्रोल किया है, जिसका सीधा सीधा असर होगा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस पे। तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तेल की कीमतें बढ़ना ऐसे टाइम पे जब इंटरनेशनल लेवल पे कई देशों की अर्थव्यवस्था हमें लगता है कि थोड़ा सा डाउन है या फिर रिसेशन में जा सकती है, ये अमेरिका अभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। ये जरूर है कि इलेक्शन साइकिल है और डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन पे अटैक करेंगे कि वो इसराइल के साथ नहीं है, लेकिन जो बाइडेन के पास ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह अमेरिकन वॉरशिप्स ने ईरानियन मिसाइल और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया। और इसका हवाला दे के जो बाइडेन ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि हम इसराइल को खत्म नहीं होने देंगे, इसराइल को अटैक फेस अकेले नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इसराइल का रिटेलिएशन एक कंप्लीटली अलग बात है, उस पर हम सपोर्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि पूरे मिडिल ईस्टर्न रीजन में लड़ाई की आग और फैलेगी उससे। तो इस वक्त जो वहाँ पे स्थिति नज़र आ रही है वो इजरायली रिटेलिएशन आपको लग रहा है कि चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर भी है, चूंकि यूके ने, यूएस ने, इन तमाम लोगों ने कहा है कि इजराइल अब इसकी जवाबी कार्रवाई ना करे। ईरान की तरफ से भी कहा गया कि अगर आप जवाबी कार्रवाई और नहीं करते हैं तो ठीक है, हमारा हमला पूरा हुआ, नहीं तो आगे हम भी और जवाब फिर से हमला कर सकते हैं। तो इस वक्त की स्थिति आपको आगे की सिचुएशन क्या लग रही है? सिक्योरिटी काउंसिल की भी बैठक हुई है इसे लेकर। मुझे ये लगता है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर प्रेशर में कुछ जवाबी कार्रवाई तो करेंगे। मुझे ये लगता है कि वो डायरेक्ट अटैक करने की बजाय इनडायरेक्ट टारगेटेड असैसिनेशन के लिए जा सकते हैं,
ताकि वो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को दिखाएं कि जिन लोगों ने ये अटैक प्लान किया है, हमने उस प्लानिंग के लीडर्स को नेस्तनाबूद किया है, लेकिन डायरेक्ट अटैक इसके बियॉन्ड, इससे बड़े पैमाने पर नहीं करेगा इसमें। तो ये इस वक्त लग रहा है क्योंकि ये इस समय सही नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर बहुत असर पड़ सकता है इसका, और ये किसी के भी हित में नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका मुश्ताक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त एक ब्रेक ले रहे हैं हम। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड।